discussed sequences and then we started with infinite series. Yes or no? Infinite series, have I started this topic? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Shall I start from the beginning of this topic or shall I resume from where I left it? Ma'am, please start from the infinite series. Uh, suppose you are given a sequence A whose terms are A1, A2, A3 and so on. Now we will define a new sequence S1, S2, S3 as S1 is equal to A1, S2 is equal to A1 plus A2. That means S2 क्या है? जो भी sequence है उसकी first two terms का sum. S3 will be sum of first three terms. S4 will be sum of first four terms. Similarly, you will construct all the terms and the nth term will be given by sum of first n terms of this sequence. That is A1 plus A2 plus A3 up to AN. In summation form, it can be written as summation of I from 1 to n. How I have constructed this sequence, is that clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then this sequence Sn, nth term जो है is called nth partial sum. अगर हम n की वैल्यू को 2 लेंगे then S2 A1 plus A2 will be the second partial sum. If I take n is equal to 4, S4 will be called fourth partial sum. अभी partial sum किसका बोलेंगे? एक सीरीज का. और वो सीरीज क्या होगी? That series is obtained by summing all the terms of the sequence. इस sum में तो infinite sequence है. The series that will be formed will be A1 plus A2 plus A3 so on. That is summation of I from 1 to infinity. This is called series. Since there are infinite terms, it is known as infinite series. And जो Sn है, that is called the nth partial sum of this series. Yes? Any doubt? No, ma'am. No, ma'am. मेरी वॉइस क्लियरली ऑडिबल है ना सबको? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Yes, Now, ma'am. अब हमने पहले बात करी थी सीक्वेंस के डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस के बारे में. सिमिलरली सीरीज भी कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगी. अब सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी वो किस पे डिपेंड करती है? nth पार्शियल सम पर. हमने Sn कंप्यूट करेंगे हम. जो nth पार्शियल सम होगा सीरीज का, अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और एक फाइनाइट नंबर s के इक्वल है, देन यू से दैट द सीरीज इज डाइवर्जेंट. एंड उस सम का सीरीज, क्योंकि सम हो रहा है काफी सारी टर्म्स का, सीरीज इज बेसिकली सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. तो दैट वैल्यू जो लिमिट होगी दैट इज कॉल्ड द सम ऑफ द सीरीज. अगर भी जो लिमिट है ये इनफाइनाइट है, देन यू से दैट द सीरीज इज डाइवर्जेंट. सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी या कब डाइवर्जेंट होगी ये क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब अगर हमारी ये जो लिमिट है, लिमिट ऑफ Sn, अगर वो यूनिक नहीं है, मतलब देयर आर 2 पॉइंट्स टू व्हिच दैट लिमिट इज कन्वर्जिंग, देन वी से दैट द सीरीज इज ऑसिलेटिंग. मैं भी एग्जांपल दिखाऊंगी सबको क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले देखो सीरीज आपको एक गिवन है समेशन ऑफ an which is equal to summation of n square. That means an sequence की nth term is given by n square. अगर आप n को 1 पुट करोगे तो भी 1 स्क्वायर, 2 पुट करोगे 2 स्क्वायर, 3 पुट करोगे 3 स्क्वायर सो ऑन. और समेशन है तो हमने प्लस का साइन लगाया. दैट मींस वी आर गिवन अ सीरीज नॉट अ सीक्वेंस. अब सीरीज से कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी तो उसके लिए पहले मुझे इसका क्या निकालना है? nth पार्शियल सम. nth पार्शियल सम क्या होगा? इस सीरीज की n टर्म्स का सम. तो n टर्म्स का सम कैसे गिवन होगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n स्क्वायर. And you know that the sum of squares of first and natural number is given by this formula, n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. Yes or no? Yes, ma'am. Now you will compute the limit of this sequence. अब आप देखो जो ये हमें Sn मिला है इसका डिनोमिनेटर तो हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे मैं n को 1 लूं, 2 लूं, 3 लूं, so on. Yes or no? Sn के लिए डिनोमिनेटर तो हमेशा 6 ही रहेगा ना, अगर मैं क्लोज फॉर्मूला Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर हमने n को 6 लिया तो इट विल बी 6 into 7 into 2 is 13.
7 लेंगे तो न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, 8 लेंगे तो न्यूमरेटर और इंक्रीज होगा। दैट मीन्स जो ये सीक्वेंस की टर्म है Sn वो तो इंक्रीज होती जा रही है। दैट मीन्स जैसे जैसे n बहुत बड़ी वैल्यू लेगा Sn की वैल्यू भी will also become very large. That means as n tends to infinity, the limit of this term n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 will tend to infinity, जो कि फाइनाइट नहीं है। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस Sn है ये हमारा इनफाइनाइट वैल्यू अप्रोच कर रहा है। दैट मीन्स हमारी सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट। अगर ये फाइनाइट वैल्यू लेता तो हम कहते हैं हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है। ये एग्जांपल क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट आप एक सीक्वेंस कंसिडर करो, सीरीज कंसिडर करो। 4 minus 3 minus 1 plus 4 minus 3 minus 1 plus 4 minus 3 minus 1। आप देखोगे 4 minus 3 minus 1 ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। अगर आप Sn, अब इसका हम पार्शियल सम कंप्यूट करते हैं। अगर हम फर्स्ट पार्शियल सम कंप्यूट करें S1, वो क्या होगा, सिर्फ फर्स्ट सम 4। S2 सेकेंड पार्शियल सम क्या होगा, फर्स्ट टू टर्म्स का सम 4 minus 3 which is 1। S3 will be sum of first three terms which is 4 minus 3 minus 1 which is 0। S4 क्या होगा, first four terms का sum, it will be 4 minus 3 minus 1 plus 4। ये वाली टर्म तो 0 कंप्यूट करिए टोटल, तो 4 हमारे पास बचा। Similarly S5 is coming to be 1, S6 is coming out to be 0। That means जो आपका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनेगा उसकी टर्म्स कैसी होगी, 4 1 0 4 1 0 4 1 0। Yes or no? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. तो जो आपका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का जो सीक्वेंस बनेगा उसमें काफी सारी टर्म्स क्या है, 4 के बराबर है, काफी सारी 1 के बराबर है और काफी सारी 0 के बराबर है। सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है, वो वैल्यू जिसके आसपास आपके सीक्वेंस की काफी सारी टर्म्स हो, उसके क्लोज हो। तो आप देखोगे यहाँ पे 3 वैल्यूज है जिससे सीक्वेंस की काफी सारी टर्म्स क्लोज है। अगर मैं n को 3k + 1 का फॉर्म ले लेती हूँ, अगर मैं टर्म्स उठाती हूँ 1 4 देन 7 देन 10, अगर मैं इस तरीके से मैं टर्म्स को उठाऊंगी तो मेरी वो सारी वैल्यूज क्या होंगी, 4 के इक्वल। तो उस अकॉर्डिंग Sn की लिमिट 4 आ रही होगी। अगर मैं S2 S4 S6 S8 S12 10 S12 ऐसी वैल्यूज उठा रही हूँ तो मेरी वैल्यू क्या आ रही है, 1 के बराबर आ रही है। सॉरी 2 के बाद हम 5 लेंगे, मतलब जो n का फॉर्म होगा वो क्या होगा, 3k + 2 वाला फॉर्म होगा। और अगर n का फॉर्म हम 3k के फॉर्म का ले रहे हैं तो हमारा Sn की वैल्यू क्या आ रही है, 0। मतलब इस सीक्वेंस Sn में काफी सारी टर्म्स 4 के बराबर है, 1 के बराबर और 0 के बराबर है। तो इस सीक्वेंस की 3 लिमिट है, 4 1 एंड 0, जो कि यूनिक नहीं है। इसका मतलब ये सीक्वेंस कैसा है, नॉट कन्वर्जेंट। और हमारी सीरीज कैसी हो जाएगी, क्योंकि यूनिक लिमिट नहीं है तो कैसी हो जाएगी सीक्वेंस, और सीरीज ऑस्किलेटरी सीरीज। ऑस्किलेट करिए ना वैल्यूज के बीच में। नहीं समझ आया? मैम यहाँ k की क्या वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे? k is any positive integer, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर आप इसको 0 पुट करते हो, इट विल बी 3 into 0 + 1। n की वैल्यू 1 है, S1 के लिए देखो 4 है। अगर आप यहाँ पे 1 पुट करते हो, 3 into 1 3 + 1 4, S4 की वैल्यू भी 4 है। आप यहाँ पे k की वैल्यू 0 1 2 3 so on पुट करते रहना, जो भी n की वैल्यू आएगी उसके लिए Sn की वैल्यू 4 होगी हमेशा, जिनने ऊपर ऑब्जर्व किया है। सिमिलरली यहाँ पे अगर 0 पुट करते हो तो इट विल बी 3 into 0 0 + 2 2। n अगर हमारा 2 है तो देखो 1 है, 1 पुट करोगे तो 5 बनेगा, 5 के लिए भी 1 है। सिमिलरली यहाँ पे जब आप k की वैल्यू 0 1 2 कुछ भी पुट करोगे, इट विल गिव यू वैल्यू 0। यहाँ पे 0 पुट नहीं होगी वैल्यू, क्योंकि n 0 हो जाएगा, 0 के लिए तो हमारा S0 डिफाइन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे k की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी लास्ट पर। समझ आया? मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये सीरीज ऑस्किलेटरी क्यों होगी, ये क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. नाउ ज्योमेट्रिक सीरीज आप सबने पढ़ा है 11th क्लास में। ज्योमेट्रिक सीरीज कैसी सीरीज होती है? वैसे से ज्योमेट्रिक सीरीज, और यू हैव स्टडीड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नॉट सीरीज। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बताओ क्या होता है?
जिनका कॉमन रेशियो सेम होता है हाँ, वो जी की किन्हीं भी तरह। दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का अगर मैं रेशियो लूंगी दैट विल बी सेम, दैट इज नोन एज कॉमन रेशियो। ओके, तो अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से सीरीज कैसे ऑब्टेन होगी? उन सब टर्म्स को आप ऐड कर दो। अब देखो मैंने सीक्वेंस लिया है ए और कॉमन रेशियो लिया है आर, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी? सीक्वेंस की ए, सेकंड विल बी ए आर, थर्ड विल बी ए आर स्क्वायर। अब इन सब टर्म्स को अगर मैं सम कर दूंगी आई विल ऑब्टेन अ ज्योमेट्रिक सीरीज। ओके, यस मैम। अब आपने जब आपने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पढ़ा था आपने सम ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस का फॉर्मूला पढ़ा था। एक बार आपने फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के लिए पढ़ा था, एक बार आपने इनफाइनाइट के लिए पढ़ा था। यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। फाइनाइट के लिए तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट इनफाइनाइट के लिए आपने कंडीशन लगाई थी जब आपने 11th क्लास में किया Greater होगा than कि 1 or इनफाइनाइट, less than 1. नो, कि जो कॉमन रेशियो दैट शुड लाई बिटवीन -1 to 1, मैम वो तभी वो अच्छा आपकी इनफाइनाइट सीरीज वाला फॉर्मूला वैलिड होगा जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है। यस और नो ये पढ़ा है आपने? Yes, ma'am. अब Yes, वो कंडीशन क्यों होती है कि -1 से 1 के लिए वो फॉर्मूला वैलिड है और बाकी के लिए नहीं है, वो सब हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे, ठीक है? Okay. तो आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होगी? a plus ar plus ar square plus so on, where r is the common ratio, a is the first term. Now this geometric series is convergent if your mod r is less than 1 and divergent if mod r is greater than equal to 1. मॉड आर लेस देन 1 का मतलब है कि -1 से 1 के बीच में अगर आपका कॉमन रेशियो होगा तो वो कन्वर्जेंट है। यहाँ पे क्या मतलब है? डाइवर्जेंट कब होगी? आर की वैल्यू या तो -1 या 1 है, या फिर आर की वैल्यू -1 से छोटी हो या फिर 1 से बड़ी हो। ये मॉड की वैल्यूज क्लियर हुई? इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? Yes, ma'am. एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी का। नाउ पहले हम रिजल्ट प्रूव करेंगे जब हमारा कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। अब आपने देखा है कि सीरीज का कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस डिपेंड करता है उसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पे। अगर उसकी लिमिट एसएन की लिमिट फाइनाइट होगी तो वो कन्वर्जेंट है, अगर यूनिक नहीं है या फिर इनफाइनाइट है तो वो डाइवर्जेंट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑब्टेन करना है। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या होगा? जो भी n टर्म्स होंगे सीक्वेंस की उनका सम। तो फर्स्ट टर्म देखो a है, सेकंड टर्म ar है, थर्ड है ar स्क्वायर, तो nth टर्म क्या होगा? ar n-1। इन सब का हमने सम किया और sum of first n terms of this geometric sequence is given by a into 1 minus r की power n upon 1 minus r। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, sum of finite terms of the sequence। यहाँ पे कितनी टर्म्स है? n टर्म्स है, तो r की पावर n। Now you will compute limit of this Sn। जब आप लिमिट कंप्यूट करोगे तो लिमिट किस पे डिपेंड करिए? n की वैल्यू पे, n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे देखो a और 1 माइनस आर, यहाँ पे तो n है ही नहीं, तो हम इनको आउटसाइड द लिमिट ले लिया है। दे आर एक्टिंग एज अ कांस्टेंट, so this can be written as a upon 1 minus r limit n tending to infinity 1 minus rn। अंदर हम लिमिट लेके गए, लिमिट ऑफ 1 विल बी 1 क्योंकि सारी वैल्यूज 1 ही है तो 1 ही होगी लिमिट। इट विल बिकम 1 माइनस लिमिट ऑफ rn n tending to infinity in the bracket। आउटसाइड भी आपका a upon 1 minus r ही है। इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। नाउ अब r की वैल्यू कहाँ लाई कर दी आपकी? -1 से 1 के बीच में। r की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, लेट अस टेक r टू बी हाफ। -1 से 1 के बीच में ले लेंगे तो हमने r की वैल्यू हाफ ली है। अब हम ये rn वाला सीक्वेंस देखते हैं, इसकी लिमिट क्या होगी? तो rn सीक्वेंस क्या होगा? r, r स्क्वायर, r क्यूब, r4 एंड सो ऑन। यस और नो? Yes, ma'am. r की वैल्यू हाफ है, सेकेंड टर्म क्या होगा? हाफ की पावर 2 विच इज 1/4 विच इन डेसिमल पॉइंट फॉर्म विल बी 0.25। थर्ड टर्म इज r क्यूब, हाफ का क्यूब विच इज 1/8, इन डेसिमल इट विल बी 0.125। आप इसकी फर्दर टर्म्स कंप्यूट करना। आप देखो क्या हो रहा है, पहले 0.5 था, 0.25, पहले 0.5 था, सेकेंड टर्म 0.25, थर्ड इज 0.125, फोर्थ इज 0.0625, फिफ्थ इज 0.03125। क्या हो रही है? टर्म्स बहुत
डिक्रीज कर रही है और धीरे धीरे किसके क्लोज जा रही हैं? जीरो के। जीरो के। आप इसको वेरीफाई करना चाहो तो आप कर सकते हो हाफ की पावर 1000 कंप्यूट कर लो, 1 लाख कंप्यूट कर लो, तो आप देखो कि वो जीरो के बहुत क्लोज है। दैट मीन्स ये जो Rn होगा, जैसे जैसे n इंफिनिटी को टेंड करेगा, द वैल्यू ऑफ Rn विल अप्रोच टू जीरो, so this limit will be जीरो। zero. So the formula that you will get is a upon 1 minus r. ये कैसे है? एक फर्स्ट टर्म हमारा फाइनाइट है, आर भी हमारा वैल्यू कॉमन रेशियो फाइनाइट है, तो ये पूरा जो वैल्यू आएगी a अपॉन 1 माइनस आर दैट विल बी फाइनाइट, और एक ही वैल्यू है, दो वैल्यूज नहीं आ रही, यूनिक वैल्यू है। तो क्या हुआ, हमारा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की फाइनाइट और यूनिक वैल्यू, तो हमारी जो ओरिजिनल सीरीज थी वो कन्वर्ज कर रही है, और हमने केस क्या लिया अभी, माइनस आर से 1 के बीच। One to one. Your series is convergent. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just go through it once again, then I will explain it to you the second case. Case 2, in case, now we have to show that the series is divergent if mod r is greater than equal to 1. That is, for r greater than equal to 1 and for r less to minus 7. मैडम कुछ समझ नहीं आ रहा। r is greater than equal to 1. अगर r की वैल्यू अभी जो बोला ये पहले वाला भी समझ नहीं आ। मैम अभी जो आपने बोला उसमें वॉइस बहुत क्रैक हो गई। पिछले 2 मिनट से तो आपकी आवाज ही नहीं आ रही। तो मैं कुछ बोल ही नहीं रही थी, मैंने आपको खुद नहीं, पहले मैम। बोला था, इसलिए नहीं बोल रही थी। जो अभी आप बोल रहे थे वो बहुत खराब आवाज हो गई थी, समझ नहीं आ रहा था। हाँ कोई नहीं, वो मैं रिपीट करती हूँ। अब क्लियर है वॉइस? यस मैम। एंड हु वाज दैट पर्सन हु सेइंग कि लास्ट 2 मिनट्स से आप कुछ बोल ही रहे थे? योर नेम?
We have shown that the series is convergent for mod r less than 1. Now we will show that the series is divergent for mod r greater than equal to 1. Mod r greater than equal to 1 means that the value of r is either greater than equal to 1 or the value of r is less than equal to minus 1. So first I will consider the case where value of r is greater than equal to 1. तो उसके लिए पहले हम डाइवर्जेंस शो करेंगे. Is that clear? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Now I first consider the case where value of r is 1. जब आपकी value r की 1 होगी, then this series, when you multiply each term by 1, here this will be a, this will be a into 1, a again, a into 1 square, a. That means all the terms of the series will be equal to a. And the series will be given by a plus a plus a plus and so on. Hence, sequence of partial terms will be obtained by summing the first 10 terms. तो सारी terms तो a हैं और उनको n times अगर हम sum करेंगे, you will get n a. Is this clear? Yes, ma'am. अब इसकी हम लिमिट लेंगे. अगर हम लिमिट लेते हैं n टेंडिंग टू इंफिनिटी, अगर मैं n को 1000 लेती हूँ, दिस सम विल बी 1000 a. इफ आई टेक इट टू बी 1 लाख, इट विल बी 1 लाख a. दैट मींस जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, ये जो सीक्वेंस की वैल्यू वो भी इंक्रीज हो रही है. Therefore, limit of Sn as n tending to infinity will be infinity. तो ये इनफाइनाइट वैल्यू है. इसका मतलब हमारी सीरीज क्या करेगी, जो ओरिजिनल सीरीज है वो डाइवर्ज करेगी. और ये कौन सा केस हमने कंसीडर किया है, फॉर r इज इक्वल टू 1. इज दिस क्लियर व्हाई द सीरीज विल बी डाइवर्जेंट फॉर r इज इक्वल टू 1? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now take any value of r greater than 1. अभी हमने पहले केस 1 में भी किया था, हमने सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम Sn क्या ऑब्टेन किया था, a into 1 minus Rn की Rn upon 1 minus r. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से अगर आप नेगेटिव कॉमन लोगे, यू विल ऑब्टेन a into Rn minus 1 upon में r minus 1. दिस फॉर्म. अब हमारी r की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1. हमें इसकी लिमिट कंप्यूट करनी है. लिमिट ऑफ Sn n टेंडिंग टू इंफिनिटी विल बी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी a into Rn minus 1 upon r minus 1. A or r minus 1 does not depend on n, so they have been taken outside. And inside you will be left with limit n tending to infinity r की power n minus 1. 1 को अलग से इसलिए लिख लें क्योंकि लिमिट ऑफ 1 विल बी 1. अब हम देखते हैं इसकी लिमिट क्या होगी. r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है. अगर हम r को 2 लें, सपोज यू कैन टेक इट टू बी 3, 4 so on. अब हम सीक्वेंस कंप्यूट करते हैं. r, r square, r cube, r4, r5. This will be the sequence given by r की power n. When r is 2, the first term is 2. Second term will be 2 square, which is 4. Third term will be 8. Fourth term will be 16. You can see जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जो टर्म है सीक्वेंस की उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है. Therefore, as n tends to infinity, the limit of Rn will also be infinity. और इंफिनिटी में से कुछ हम सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करें, वो अप्रोक्सीमेटली इंफिनिटी होगा, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है. क्योंकि अब ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है उसकी लिमिट फाइनाइट नहीं है. इसका मतलब जो आपकी ओरिजिनल सीरीज है वो डाइवर्ज कर रही है. ग्रेटर देन 1 के लिए भी डाइवर्ज कर रही है, 1 के लिए भी डाइवर्ज कर रही है. देयरफॉर फॉर r ग्रेटर देन इक्वल टू 1 द सीरीज इज डाइवर्जिंग. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just go through it once again. Then we will do for the case where r is less than equal to minus 1.
Shall I start with the case where r is less than equal to -1? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Before starting with this, I'm ending this class and again sharing the link with you guys. Rejoin using that link. Now consider the case where r is less than equal to -1. First, we will take the value of r to be -1. Now, when r is equal to -1, in that case, your series will be, first term will be a, next term will be obtained by multiplying a by -1. So next term will be -a. Third term again इसको -1 से multiply करेंगे, it will be a. Next will be -a. So the series will be a minus a plus a minus a. Yes or no? Yes, ma'am. कंप्यूट करो, खुद कंप्यूट करो, चेक करो कि यही सीरीज बनेगी a minus a plus a minus a and so on. एंड देन इसके लिए मुझे बताओ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या होगा. जैसे हमने ये वाला एग्जांपल किया था ना 4 minus 3 minus 1. In the same way do for the case where r is equal to -1. S1 S2 S3 कंप्यूट करो फर्स्ट टू सीक्वेंस पार्शियल सम के, देन चेक करो ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है.
your S1 will be A, S2 will be sum of first two terms, A minus A Diverging, will be 0. S3 is A minus A plus A, which is A. S4 will be sum of first four terms, which is coming out to be 0. तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, जब n की वैल्यू ऑड होगी 1, 3, 5 एंड सो ऑन, जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो उसकी वैल्यू A होगी. जब n इवन होगा, इन दैट केस वैल्यू ऑफ द Sn will be 0. तो आप देख रहे हो कि Sn क्या है हमारा, दो लिमिट पे कन्वर्ट कर रहा है, A और 0 पे. डज नॉट हैव अ यूनिक लिमिट, देयरफॉर द गिवन सीरीज इज ऑस्किलेटिंग, दैट मींस डाइवर्जेंट. Now we consider the case where r is less than -1. Tell me any value of r which is less than -1. Suppose करो कोई भी वैल्यू. -3. -3. Can I write -3 as -1 into 3, where 3 is a positive number? Yes. Yes, ma'am. So you can write r as -k, where k is some positive integers greater than 1. k की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव नंबर इंटीजर है पर ग्रेटर देन 1 है. Yes or no? I can write r as -k. k Yes, हमारा ma'am. पॉजिटिव नंबर होगा. Then in that case, r की power n will be -k की power n, which will be -1 की power n, k की power n. आपका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आपने ऑलरेडी ऑब्टेन किया था पहले भी. Sn is equal to A into 1 minus r की power n upon 1 minus r. r की पावर n इस केस में क्या है, -1 की पावर n kn. और नीचे हमने r को -k पुट किया, so you will get A into 1 minus -1 की पावर n kn upon में 1 plus k. जब आप इसकी लिमिट कंप्यूट करोगे n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो देखो यहाँ पे n वाली टर्म तो सिर्फ यही है. आप देखो k की पावर n है, k पॉजिटिव नंबर है. जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, k की पावर n की वैल्यू भी इंक्रीज होगी. मैंने अभी ऊपर केस कराया था आपको, सेम वही चीज ऑब्जर्व करेगा. दैट मीन्स जैसे जैसे n इंफिनिटी को टेंड करेगा, ये वैल्यू किसको टेंड करेगा, k की पावर n इंफिनिटी को. बट इसके साथ में क्या है, -1 की पावर n. तो डिपेंडिंग अपॉन n आप पॉजिटिव लेते हो या नेगेटिव लेते हो, तो क्या होगा, वो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, ये पूरी टर्म की लिमिट. अगर नेगेटिव इंफिनिटी है तो उसमें कुछ मल्टीप्लाई है, थोड़ा बहुत नंबर ऐड करूंगी मैं पॉजिटिव नंबर, तो अगेन वो नेगेटिव इंफिनिटी ही रहेगा. और अगर वो बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर आता है तो 1 माइनस होने की वजह से वो अगेन नेगेटिव हो जाएगा. तो दिस विल टेंड टू माइनस इंफिनिटी, ये वाली जो टर्म है. तो इसकी वजह से जो पूरा हमारा टर्म है Sn वाला, वो किसको टेंड करेगा, माइनस इंफिनिटी को, as n tends to infinity. Therefore, the series will diverge. Is this clear मैम to ये everyone? ऊपर r पावर n इक्वल्स टू -1 पावर n k पावर n कैसे हो गया था? अभी हमने ऊपर लेट किया था ना, देखो r की पावर n -1 की, am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्क्रीन विजिबल नहीं है क्योंकि सिस्टम में कोई नेटवर्क इशू आ गया है. That was the screen is not visible. I will resume from this with this case from the next class onwards. Okay.
ओके मैम। अटेंडेंस आई हैव ऑलरेडी टेकन। और ये नोट्स मैंने शेयर कर दिए ग्रुप पे अभी? ओ मैम ये वाले नहीं किए। नहीं जी, मैं अभी शेयर कर देती हूँ, यहाँ तक आप गो थ्रू कर लेना। जस्ट लास्ट पार्ट इज Okay, लेफ्ट दैट आई विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। Okay, ma'am. ओके मैम, थैंक यू मैम।